یہ واقعتاً تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور 3 سال سے بستر پر ہے، وہ وظیفہ کیسے کرے؟ الطاف حسین انڈیا سے، میرے اوپر گندے علم کا جادو ہے۔ جب جادو کو سپیس ملتی ہے تو جادو اپنے اندر بہت زیادہ قوت لے کر آ جاتا ہے۔ میری ساس اور سسر ہم کو کھانے پینے چیز میں، یعنی گوشت، مچھلی، انڈے میں جادو کر کے دے دیتے ہیں۔ میں جب بھی وظیفہ کرتی ہوں تو پیٹھ اور سر کے پیچھے پچھلے حصے میں بہت گرمی جل کسی عورت کے اوپر شادی کی بندش کروا دیتا ہے کہ اس کا رشتہ کسی جگہ نہ کروانے والے کو بھی نقصان ہو۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کارڈ اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نیچے آنے والے کومنٹس کے اوپر ہے۔ آج ہم وہ کومنٹس آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور جن جن کومنٹس کے اندر مختلف قسم کے سوال جواب ہوں گے، ہم وہ سوال جواب بھی بتائیں گے اور ان کے اوپر اپنی رائے بھی رکھیں گے۔ پہلا کومنٹ ہے سیدہ شمسہ ہیں، انہوں نے کومنٹ کیا ہے کہ آپ کی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں اور بہت فیض پایا، انتہائی خطرناک اور کئی طرح کے عمل تھے جن کا شکار تھی، نیز یہ کہ کچھ مسائل بہت ہی پرانے تھے اور کامل شفا نہیں مل رہی تھی۔ آپ کے کئی بتائے ہوئے قرآنی اور شرعی اعمال کو کیا اور بہت فائدہ پایا۔ دل کی گہرائیوں سے کہ اس کار خیر جو مخلوق خدا کے لیے آپ نے کیے ہیں، دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے، الہی آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں جو ہمارے تجربات کی کسوٹی پر رکھے ہوئے ہیں، اور بارہا تجربات ہم نے ان کے اوپر کیے ہیں۔ ہم وہی اعمال بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کا وقت بچایا جائے، کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکے۔ دوسرا، ہر اس عمل سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں جن اعمال سے انسان کی زندگی بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو۔ کوشش کرتے ہیں جو لوگ ایسے اعمال بتاتے ہیں ہم ان کے بارے میں بھی آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ کس طرح کے اعمال کرنے چاہیے اور کس طرح کے نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا کومنٹ ہے شبی عباس کے نام سے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں 15 سال سے جادو کی وجہ سے ذلیل ہو گئی ہوں، شادی ہوئی فوراً ہی طلاق ہو گئی، گھر والے میری بات کو سمجھتے ہی نہیں، دماغ کام نہیں کرتا، خوف بہت رہتا ہے، روتی رہتی ہوں ہر وقت، یہاں تک کہ موت مانگتی ہوں کہ میں مر جاؤں، جب بھی کرتی ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، بتا سب دیتے ہیں کہ جادو ہے، بہت سخت، لیکن علاج کوئی نہیں کر پاتا صحیح سے، میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت ہی زیادہ، مجھ سے کانٹیکٹ کریں پلیز۔ آپ نے جو اپنی پریشانی بتائی ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے، الجھنوں سے، مصیبتوں سے نکال دے۔ اگر جادو 15 سال کا ہی ہے تو یقیناً یہ جادو واقعتاً خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جب جادو کے اندر وقت گزر جاتا ہے، جب جادو کو سپیس ملتی ہے تو جادو اپنے اندر بہت زیادہ قوت لے کر آ جاتا ہے اور انسان کی ہڈیوں اور اعصاب تک کو متاثر کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں پریشان اور الجھن کی کوئی بات نہیں ہے، پرانے جادو کے لیے ویڈیو ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر بھی ہو، اس میں جو عمل بتلایا گیا ہے وہ عمل کر دیں۔ اگر یہاں ہم عمل بتلاتے ہیں بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اتنا آپ کو ضرور بتلائیں گے کہ 33 آیات منزل جو ہے اس کو پڑھ لیا کریں۔ تیسرا کومنٹ ہے الطاف حسین کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، الطاف حسین انڈیا سے، میرے اوپر گندے علم کا جادو ہے، جادو دفن ہے، پیخانے پہ کر کے دفن کیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، آنکھوں پر بھی کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایسا جادو ہو سکتا ہے کیونکہ جادو ہوتا بھی گندگی ہے، خود گندگی اور گندی چیزوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت غلیظ اور بہت مکروہ قسم کی انسان ایسی چیزیں ذکر بھی نہیں کر سکتا جن کے ذریعے جادو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا جادو دماغ اور آنکھوں کے اوپر واقعتاً بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس جادو کی کاٹ کے لیے سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام حتی مطلع الفجر۔ ان کو 313 مرتبہ روزانہ پانی پہ دم کریں اور اس پانی سے غسل بھی کریں، اس پانی کو پیئیں بھی صحیح، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر آپ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم اگر
अगर इसके अंदर कोई मजीद तब्दीली करनी होगी तो हम आपको बताते रहेंगे। चौथा कमेंट है आना बेगम का, वो फरमाती हैं कि मैं जब भी वजीफा करती हूँ तो पीठ और सर के पीछे पिछले हिस्से में बहुत गर्मी जलन होती है। अच्छा, बाज लोगों को वज़ाइफ के साथ तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसकी दो वजूहात हो सकती है। एक तो ये है कि वजीफा ठीक असर कर रहा होता है, आपका तीर निशाने पर जा रहा होता है, इस वजह से तकलीफ पड़ती है। जादूगर को या शयातीन को तकलीफ पहुंच रही होती है, इस वजह से वो आपको तकलीफ दे रहे होते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी तादाद के अंदर इजाफा कर दें, जिस वजीफे में तकलीफ होती है आप उसकी तादाद में इजाफा करते जाएं और उसके इर्द गिर्द अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप अपने वजीफा करने से पहले सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल को पढ़ लें, तो फिर आपकी तबीयत बिल्कुल खराब नहीं होगी, आपको वजीफे से कोई नुकसान नहीं होगा। अगला कमेंट है एम आसिफ के नाम से, वो पूछ रहे हैं कि अगर जमजम का पानी ना मिल रहा हो तो क्या किया जाए। अच्छा, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि अपने दमशुदा पानी के साथ जमजम भी मिला लें, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन बाज जगह ऐसी होती हैं जहाँ जमजम नहीं मिल सकता, तो वहाँ भी जमजम की जगह आप कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आम घर का पानी, फिल्टर वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जेर जमीन नदी वगैरह का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता। हाँ, इससे बरकत ज्यादा होती है, इस वजह से हम जो है इस बारे में कहते रहते हैं कि अब जमजम जो है इस्तेमाल किया जाए। एक और कमेंट है, मैं नाम भी उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा है कि दुआ को हिंदी में लिखा करें। कुरान की आयत है, इसको कैसे हिंदी में लिखा जाए, या हदीस होती है तो उनको हम कैसे हिंदी में लिखें। इसलिए कुरानी इबारत है तो ज़ाहिर अरबी में, कुरान अरबी में है तो अरबी में ही लिखेंगे जी। अगला कमेंट है कि अगर कोई नमाज ना पढ़ सके, बिस्तर पर 3 साल से हो और घर में कुरान पाक पढ़ने वाला भी ना हो, तब क्या करें। ये बहुत वाकई खतरनाक सूरत हाल होती है। ये वाकईतन तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर कोई बंदा नमाज भी नहीं पढ़ सकता और 3 साल से बिस्तर पर है, वो वजीफा कैसे करेगा। उसके लिए बेहतर ये होता है कि वो उसके सामने कोई ऐसी सीनरी लगाई जाए जिसके ऊपर लफ्ज़ अल्लाह मोटा यानी जली हरूफ के साथ लिखा हुआ हो, और उसको वो देखता रहे और उससे ये तसव्वुर करता रहे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत मुझे देख रही है। क्योंकि वैसे तो एक मुराकबा होता है, बाज़ लोग आम लोग जो होते हैं वो मुराकबा नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए बेहतर हल ये होता है कि लफ्ज़ अल्लाह की सीनरी को गौर से देखें और उससे प्यार भरी निगाह से देखें और इस तसव्वुर के साथ देखें कि लफ्ज़ अल्लाह को मैं देख रहा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह की रहमत मुझे ढांप रही है और अल्लाह की रहमत से मेरे अंदर एक रूहानी ताकत आ रही है। उस ताकत के जरिए जो है मैं काफी हद तक जो है अपने आप को ठीक कर सकता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की इस मदद और नुसरत के साथ मैं बेहतर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब आप तबीयत में अंदर थोड़ी सी भी चुस्ती हो तो आप नमाज की तरफ आ जाइएगा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे और कुरान पढ़ना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला कमेंट है कि मेरे ससुराल वाले मेरे ऊपर पता नहीं क्या जादू कर देते हैं, मेरा नमाज से दिल हार जाता है, नमाज पढ़ने का फिर दिल ही नहीं करता, तो क्या हम किसी भी किस्म का गोश्त खाना बंद कर दें। तीसरा इस औरत का कमेंट है, वो फरमा रही हैं कि मेरी सास और ससुर हमको खाने पीने चीज में यानी गोश्त, मछली, अंडे में जादू करके दे देते हैं, पता नहीं क्या लेटरीन में जाकर करते हैं और हम सलवार वगैरह में पेशाब कर देते हैं, लेटरीन हो जाती है हमको। ये उन्होंने अपनी तरफ से किया। मुमकिन है कि ये जादू हो ही ना उनके ऊपर, ऐसे उनका वहम हो। मोहतरमा, जरूरी नहीं होता कि आपका सास ससुर आपके ऊपर जादू कर रहा हो। बाज दफा आपको वहम और ऐसे शक भी हो सकता है। जब तक कि आपने अपनी आंखों से ना देखा हो, आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, तो आप ऐसे किसी के ऊपर बदगुमानी करेंगे तो आपके लिए गुनाह होगा। इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, इसलिए आप बदगुमानी से बचें। और बदगुमानी बहुत बड़ा, खुद एक जादू है बदगुमानी, और ये जादू इंसान को बर्बाद करके रख देता है। किसी इंसान के ऊपर खामखा की बदगुमानी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा अमल करते हुए, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इनको 313 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको किसी भी किस्म का कोई जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगला कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आप मेरी मदद करें प्लीज, जादू की मर्ज में मुब्तला हूँ, प्लीज मुझे कोई तरीका बताएं ताकि मैं इस अजाब से निजात दिलाने में आप मेरी मदद करें। जादू के हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोज है, गालिब 150 से भी ज्यादा हो चुकी है वीडियोज, या 150 के लगभग है। मुख्तलिफ वीडियोज है। इन भाई खिदमत में इल्तिमास है कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं और उसमें कोई सा भी अमल जादू के रिलेटेड करेंगे, इंशाअल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। सहमा मिर्जा कहती हैं, फिर साहब मैं
मैं भी 20 साल से जादू का कार हूँ, जादू खत्म नहीं होता, बार बार हो जाता है, पढ़ाई भी बहुत करती हूँ और सख्त जादू है, इलाज बहुत करवाया पर कोई इलाज कर नहीं पाया, आप कुछ रहनुमाई कीजिए, बहुत परेशान हूँ, तकलीफ में हूँ। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। दूसरी बात यह है कि आपने तशखीस सही माने में कराई है, आया ये जादू है भी नहीं। अक्सर तौर पर लोग जो है हमारे पास आते हैं, उनमें से बाज लोगों के ऊपर जादू होता भी नहीं है, जब हम चेक करते हैं जादू होता भी नहीं है, मेडिकली मसला होता है या नफ्सियाती इशू होता है। सबसे पहली बात यह है कि आपकी खिदमत में कि आप अपने आप को चेक कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चेकिंग का एक लिंक भेजा है, उस लिंक के जरिए, उस वीडियो के जरिए आप अपने आप को घर बैठे बआसानी चेक कर सकते हैं। अब चेक कर लीजिएगा, अगर जादू वाकईतन जादू आपके ऊपर है और वाकईतन पुराना जादू है, तो पुराने जादू के हवाले से हमारी एक वीडियो अपलोड है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर रख देंगे, आप देख लीजिएगा, आपको भरपूर फायदा होगा। वही अमल करें, आपको इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह 20 साल का 50 साल का पुराना जादू हो तब भी खत्म हो जाएगा। अगला कमेंट है कि मोहतरमा पूछती हैं कि जबान बंदी वाले जादू अगर किया गया हो तो इसको कैसे खत्म किया जाए, जबान बंदी कैसे खोली जाए। तो जबान बंदी का जो अमल होता है ये मुख्तलिफ सूरतों में किया जाता है। बंदा अजीब किस्म की बातें करता हो, अजीब किस्म का झगड़ालू हो, तो उसकी जबान बंदी के लिए आम रूहानी अमलियात भी किए जाते हैं। और बाज दफा ये होता है कि कोई बंदा वैसे उसको अपने माँ बाप से नफरत करवा के जबान बंदी करवाई जाती है, या बीवी से या बच्चों से, या इस तरह का एक जबान बंदी का जादू करवाया जाता है। इसके लिए भी 7 सलाम बहुत मुअस्सर है। 7 सलाम के साथ सूरत तकासुर जो है ये पढ़ लिया करें और सूरत कलम ये पढ़ लें, इंशाअल्लाह भरपूर फायदा होगा, अल्लाह ताला आपके मसला हल फरमाएंगे। आगे मोहतरमा एक और सवाल करती हैं, खौफ वाला जादू मुसल्लत है और बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता कमरे से, और अपनी वालदा के साथ भी ठीक नहीं रहता, उसके लिए भी यही है कि 33 आयात का अमल कर ले, सुबह शाम उसको पिलाएं और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका बेटा आपके साथ ठीक रहेगा। अगला कमेंट है उस्मान शाह नाम से, वो कहते हैं कि आपसे एक बात पूछना था, अगर कोई आदमी किसी औरत पे शादी की बंदिश लगा दे, उस लड़की की शादी सिर्फ उससे हो और किसी से नहीं हो, क्या वो आदमी पे भी बंदिश लग जाएगी या हजरत, या सिर्फ लड़की पे ही शादी की बंदिश होगी? लड़का कहीं भी शादी कर सकेगा या लड़की के साथ साथ उस पे भी बंदिश लग जाएगी? पहली बात यह है कि अगर कोई बंदा किसी औरत के ऊपर शादी की बंदिश करवा देता है कि इसका रिश्ता किसी जगह ना हो, तो याद रखिए सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता, उस लड़की को नुकसान नहीं होता, ये करवाने वाले को भी नुकसान होता है। अगर चाहे आप अपना नाम मेंशन करवाएं या ना करवाएं, दोनों सूरतें। बाज दफा जादूगर खुद ही नाम मेंशन कर देता है, आपसे नाम और वालदा का नाम पूछेगा, आपका नाम मेंशन कर देता है। अगर आपका नाम मेंशन किया है तो फीसद आपके ऊपर उसके असरात पड़ेंगे। उसने आपका नाम मेंशन नहीं किया अब भी आपके ऊपर असरात पड़ेंगे, क्योंकि जादू करवाया है और किसी ना हक के ऊपर ऐसा जादू करवाया है। जादू करवाना, तावीज, जादू के तावीज लेना, हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को इस दुनिया में इतना लेना के देने पड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको हम यहाँ आप लोगों के सामने जिक्र भी नहीं कर सकते। इस तरह के भयानक जो है उनको नतज का सामना करना पड़ गया है। इसलिए जादू एक खुद कभी चीज है और जो करवाता है वो बहुत बड़े गुनाह में शामिल हो जाता है। अगर किसी ने ऐसा करवाया है तो अल्लाह के हुजूर भी तौबा करे, और उसकी तौबा तभी कबूल होगी जब उस बंदे से माफी मांगेगा। अगला कमेंट है मुबारक अली का, जनाब एक सवाल करना चाहता हूँ जनाब से कि मेरी भाभी की मौत हो गई थी, उसके कब्र से एक कागज पे एक बुत और तलवार है, तो वो क्या हो सकता है? प्लीज बता दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि मेरी भाभी फोत हो गई, उनकी कब्र के ऊपर कोई भूत वगैरह पड़े थे कागज के ऊपर बने हुए, और कोई तलवार इस तरह पड़ी थी। ये अमूमन नफरत और जुदाई का जादू होता है औरतों की कब्रों के साथ। अगर मर्द के साथ जुदाई और नफरत करवानी हो तो मर्द की कब्र के ऊपर, किसी औरत की औरत के साथ या किसी मर्द की औरत के साथ जुदाई और नफरत का आपस में लड़वाना मकसद हो तो तब जादूगर करते हैं। इन दोनों सूरतों में जो है जादू करवाने वाला और जादू करने वाला दोनों गुनाहगार हैं, दोनों को माफी मांगनी चाहिए। महवीन कहते हैं कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें कारी साहब, मेरे हस्बैंड के सर में और पेट में जादू के जरिए दवाई लगाई हुई गई है, उसके लिए कोई वीडियो अपलोड करें। अब क्या पता है कि उस आपने अलामत अगर जिक्र की होती तो हम आपको बता देते कि इस अलामत की वजह से ये, उस अलामत से हम पहचान लेते कि ये अलामत है तो इसका मतलब है कि ये जादू हो सकता है। दवाई लगाने का आखिर जहर है, कोई ना कोई तो मकसद होगा। अमूमी तौर पर कोई भी जादू हो तो उसके लिए 33 आयत मंजल बहुत मौसर है, और इसके साथ साथ 7 सलाम भी पढ़ लें तब भी आपको भरपूर फायदा होगा।
उम्मीद है आपको ये आज के हमारे सवालात और जवाबात का सिलसिला बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपकी इस हवाले से कोई राय हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का और आपकी राय का एहतराम करते हुए हम आपको ज़रूर इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।